بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ارسل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک ویو۔ ناظرین محترم، کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں ایک عجیب فضا قائم ہو چکی ہے اور دفعہ 144 نافذ ہے پنجاب میں اور مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت کل تعداد ہے جو کرونا وائرس کے مریضوں کی وہ 1500 ہے، جن میں اسلام آباد میں 39 ہیں، سندھ میں 469 مریض ہیں، خیبر پختونخوا میں 188 مریض ہیں، اور خیبر پختونخوا کے علاوہ اگر پنجاب میں دیکھیں تو سب سے زیادہ مریض پنجاب میں ہی ہیں۔ پنجاب میں مریض 557 ہیں۔ بلوچستان کی بات کی جائے تو وہاں مریضوں کی تعداد 138 ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں مریضوں کی تعداد 2 ہے۔ گلگت بلتستان کی بات کی جائے تو وہاں مریضوں کی تعداد 2 ہے۔ اموات کی بات کی جائے تو 12 مریض اس موذی وبا کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور اگر صحت یابی کی بات کی جائے تو 25 مریض اس وقت مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وفاق کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ ہر ضلع میں 1500 تابوت تیار رکھیں، کرونا وائرس سے اموات کا خدشہ ہے، یہاں پر تدفین کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اس کے لیے، اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ناظرین کیا صورتحال بنے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان پر رحم فرمائے۔ اور بات کریں گے پاکستان کے اداروں کی جو کہ کرونا وائرس کے حوالے سے میدان عمل میں کام کر رہے ہیں، جن میں پولیس ہے، فوج ہے، خصوصاً پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں۔ ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی برادری جو ہے، میں ان کو بھی بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف علماء کرام کی ویڈیو پیغام جاری ہوئے، عوام کے نام قابل عزت علماء کرام تھے۔ ان میں ہی سے ایک شیخ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب ہیں، جو کہ تنظیم الاخوان پاکستان کے امیر بھی ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا جس میں بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے گفتگو کی اور عوام کو سمجھایا۔ میں چاہوں گا کہ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب کا کلپ چلایا جائے تاکہ وہ آپ بھی سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جن حالات سے پوری دنیا دو چار ہے، میں اور آپ ہم سارے اس سے واقف ہیں کہ کرونا وائرس ایک وبائی مرض ہے جو بڑی شدت سے پھیل رہا ہے، اور اس کے تدارک کے لیے ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے۔ جہاں حکومت وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ رہی ہے، وہاں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اسی طرح مفتیان کرام، علماء کرام اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور جہاں جس حد تک وہ اجازت دے رہے ہیں اسے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور مساجد میں جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں، نماز باجماعت کی ادائیگی میں، جہاں جہاں جو منتظمین ہیں وہ ضروری ہدایات جو حکومت دے رہی ہے، جو محکمہ صحت دے رہا ہے، جو عامت الناس کی ضرورت ہے اور ان کی حفاظت کے لیے ہے، اس پر پوری طور پر اس پر عمل کیا جائے، اور اپنا جو ایک والنٹیرلی کردار ہے اس کے کردار کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اسی ضمن میں بحیثیت شیخ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان اپنے تمام سالکین، اپنے تمام ممبران کی طرف سے یہ بات اپنی گورنمنٹ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سارے والنٹیرلی حاضر ہیں۔ جہاں کبھی جس جگہ ضرورت پڑے، جہاں اناؤنسمنٹ ہوگی، ہم وہاں حاضر ہوں گے۔ اور یہی بات میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے، تمام اہل وطن سے عرض کروں گا کہ
पाकिस्तान पाक सरज़मीन है और एक बहुत खूबसूरत और बागैरत कौम है, तो इस वक्त हमें एक कौमी हमीयत की ज़रूरत है। आएँ छोटे छोटे इख्तलाफात और छोटी छोटी बातों को ज़ेर बहस न लाएँ, कौमी इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहरा करते हुए इस वबा को शिकस्त दें और इंशाअल्लाह अल्लाह करीम है, रहीम है, हमारी गलतियाँ और गुनाह माफ़ फरमाए और हमें इस बला से छुटकारा अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। जी, आपने अमीर अब्दुल कदीर आवान साहब का क्लिप सुना जिसमें उन्होंने फरमाया कि कोरोना वायरस के तदारक के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को रज़ाकार के तौर पर तैयार रखना चाहिए। अब मैं बढ़ूँगा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद होंगे मंडी बहावलदीन से मोहम्मद शहबाज मुगल। जी अरसल, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहावलदीन में, जहाँ कोरोना वायरस से बचाव के लिए जज़वी लॉकडाउन का आज 7वां रोज़ मकामी इंतज़ामिया के साथ पाक आर्मी के दस्ते भी शहर भर में गश्त कर रहे हैं। लाउड स्पीकर से घरों में रहने के ऐलानात किए जा रहे हैं। बिला ज़रूरत घरों से ना निकले। शहर और गिरदनवा के कस्बात के तमाम बाज़ार और मार्केटें, शहर के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर पुलिस और फौज की नफरी मौजूद। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है जज़वी लॉकडाउन और डबर सवारी के मरतकब अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और अगर बात की जाए फालिया की, तो हुकूमत पंजाब ने अवाम अन्नास को कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से बचाने के लिए मार्केटें और बाज़ार तो हुक्मन बंद करवा दिए, मगर फालिया में सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में खवे से खवा चलता रहा। आड़ती और ख़रीदार के दरमियान 1 इंच का फासला भी ना था। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किसी सियासी लीडर या हुकूमती एहलकार के पास कोई हल नहीं। बहुत शुक्रिया शहबाज मुगल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आप हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदा सुहाबा से नबील हसन। जी नबील, आगाह कीजिएगा सुहाबा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी अरसल, मैं हूँ मोहम्मद नबील हसन सुहावा से। आपको बताता चलूँ कि सुहावा में भी कोरोना वायरस के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुहावा में एक कंटेनर सेंटर भी कायम किया गया है और यह भी बताता चलूँ कि डबेली और बड़वा में भी पुलिस का जो है वो गश्त जारी है। इसके अलावा पाक आर्मी और रेस्क्यू के जो है फ्लैग मार्च भी किया गया। इसके अलावा जो है वो डबेली शहर में भी क्लोरीन मिला स्प्रे भी किया गया है और जो मुनाफाखोर हैं वो भी सरगर्म हो चुके हैं। मुख्तलिफ दुकानों पर जो है आटा वो नायाब हो चुका है और जो चीनी है और दूसरी अशिया जो है वो भी मनमाने रेटों पर जो है बेची जा रही है। इंतज़ामिया जो है वो भी एक्शन ले रही है, लेकिन वो शहर की हद तक जो देहात हैं वहाँ पर कोई फ़िलहाल ऐसी कोई टीम नहीं आई जो इनको रोक सके। जी, यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है वो आटा जो है वो नायाब हो चुका है। बाकी जो अशिया वो कम कीमत पर जो है वो दस्तयाब हैं। लोग जो है वो बड़ी तादाद में जो ख़रीदारी जो है वो कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट जो है स्कूल वो भी बंद हैं। इसके अलावा जो मार्केटें हैं उनमें करियाना स्टोर है, जनरल स्टोर, दूध की दुकानें जो है, गोश्त की दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप है उन पर भी जो है वो तरसील जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया नबील हसन जो कि हमें सुहाबा से अपडेट कर रहे थे। आगे मजीद बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है अरफान हरपल साहब, वॉइस कॉल पे हैं हमारे साथ मौजूद अरफान हरपल साहब। जी अरफान हरपल साहब, आगाह कीजिएगा अपने इलाके की सूरत हाल के हवाले से। जी अरसाल, मैं हूं मोहम्मद इरफान हरपल और आपको तहसील अहमदपुर सियाल से तफसीलात बता रहा हूं। जी, यहां पर दूसरे शहर की तरह अहमदपुर सियाल में भी कोरोना वायरस के पेश नज़र पाक फौज, पुलिस और डॉक्टरों की तरफ से कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम जारी है और डॉक्टरों की तरफ से आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और दूसरी तरफ आर्मी के जवानों और पुलिस की जानब से शहर भर में फ्लैग मार्च शुरू हैं। मज़ीद दीगर इदारे भी मुकम्मल तौर पर तावन कर रहे हैं। अब हमारे साथ मियाँ वाली से मौजूद हैं तनवीर आबद खां, हमारे नुमाइंदा है। इनसे जानेंगे कि आपके इलाका में इस वक्त क्या तफसीलात हैं तनवीर आबद खां से। जी तनवीर आबद खां साहब, आगाह कीजिएगा। जी अरसल, मैं हूँ तनवीर आबद खान दाऊद खैल मियाँ वाली से। जी अरसल, हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 14 दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है, लेकिन दाऊद खैल शहर में जुज़वी लॉकडाउन देखने को आ रहा है।
आम दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन सब्ज़ी, फ्रूट, बेकर्स, गोश्त और मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं और आवाम की आमदोरफ्त भी उसी तरह जारी और सारी है। ये मशहूर बैंक चौक है जहाँ पे अब मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर शायद आप मेरे अकब में भी देख रहा हूँ कि उसी तरह लोग रवां दवां हैं और कोरोना का इन लोगों के अंदर कोई खौफ व ख़तरा नहीं है। हमारी शहरियों से भी बात हुई है, उनका कहना था कि हुकूमत के ये अच्छा इक़दाम है कि 14 दिन का उन्होंने लॉकडाउन कर रखा है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि हुकूमत के साथ ताउन करें, अपने आप को महफूज रखने के लिए गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलें, घरों में महफूज रहें, ताकि इसमें उनके बच्चों की भी हिफाजत हो सकती है, उनकी अपनी भी हिफाजत हो सकती है और हमारा पूरा मुल्क भी इस वबा से बच सकता है। अभी तक दाऊद खेल शहर और इसकी गिरदुनवा में कोई कोरोना का ऐसा केस नहीं सामने आया कि जिसके बाद यहाँ की हालत तशवीशनाक हो और मुकम्मल इस इलाका को सील कर दिए जाए। लेकिन आवाम का बार बार SHO थाना ने भी हदायत जारी की हैं कि आप घरों में रहें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलें, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर ख़ास कर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो शहरियों की तरफ से भी कहना है कि आवाम को चाहिए कि वह अपने आप को महफूज रखने के लिए घरों तक महदूद रहें, इलाज से बेहतर एहतियात ज़रूरी है। जी सियालकोट चविंडा से हमारे नुमाइंदे हैं इस वक्त असमतुल्लाह खान साहिब। जी असमतुल्लाह, बताइएगा कि इस वक्त चविंडा में क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस के पेश नज़र से। जी असमतुल्लाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आगाह कीजिएगा। जी अरसल, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन है और तमाम मेन बाज़ार जो है वो बिल्कुल इस वक्त बंद है और लोग अपने घरों में कोरोना वायरस की वजह से अपने आप को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए घरों में महफूज हैं। और मैं आपको दीगर शहर के लोगों से जो है बात भी करवाता हूँ कि उनका क्या कहना है इस लॉकडाउन के हवाले से और किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। चविंडा में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये 1122 की जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो चविंडा के पब्लिक प्लेस पर जो है इस वक्त स्प्रे की जा रही है कोरोना के हवाले से। हमारे साथ एक 1122 के एहलकार मौजूद है, इनसे हम मज़ीद जानेंगे कि ये किन जगहों पर की जाएगी स्प्रे और इसका क्या मकसद है। जी ये ज़्यादा की जाएगी हॉस्पिटल में जहाँ पे लोगों की आमदफत ज़्यादा होती है। उसके अलावा फ्रूट मार्केट, सब्ज़ी मार्केट, वेजिटेबल मार्केट है और इसके अलावा जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना है वहाँ पे हम करेंगे। हम बहुत ज़्यादा परेशान है, हुकूमत बोल रही है हमने ये कर दिया है, हमने वो अनाउंसमेंट करते जाते हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं मिल रहा, किसी के पास कुछ नहीं आ रहा। बराए मेहरबानी फरमाएं, लोग दूध से, आटे से, हर खाने पीने वाली अशिया से परेशान हैं। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है ताकि ये गवर्नमेंट तक आवाज़ जा सके। मेहरबानी फरमाएं, आवाम के साथ तामन फरमाएं। जनाब 7 दिन हो गए हैं दुकान पे गए, ठीक है, दुकानें बंद है, आवाम कहाँ जाए, महंगाई इतनी हो गई है जितना कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है ना। और इस पर कोई कंट्रोल करो यार। ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 20-25 ਤੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਆ। 20-25 ਤੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਆਟਾ ਤੇ ਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਉਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਲੋ ਲੈਣ ਆਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ? ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੇ, ਮਰਾਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰ ਜੇ। चविंडा अंजमन ताजरान ये मेन बाज़ार के एक मुतरक कारकुन शेख नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कारोबार जो इस वक्त बंद हैं लोगों के और यहाँ के मौजूदा जो सूरत हाल है उससे हम नदीम शेख साहब से जानेंगे कि लोग किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जी नदीम साहब। जी असमत भाई, यहाँ पे जो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है और मैं आज 4-5 दिन से देख रहा हूँ और ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ 100 रुपये किलो वाली है वो 130 रुपये मिल रही है। गैस का लोड, दूध वगैरह और भी कुछ करियाने आटा वगैरह जो है 805 रुपये का ये हुकूमत की तरफ से ऐलान है। लेकिन यहाँ पे 1200-1300 रुपये में ना परचेज़ कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। और यहाँ का
यहाँ का ये आलम है, ये हाल है इंतज़ामिया का, बिल्कुल 0% जारी है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। हुकूमती लेवल पे जो पैकेज का ऐलान हुआ है कोई रिलीफ नहीं है आवाम को। वो भी बंदे हैं जो 100 रुपये के लिए 200 रुपये के लिए यहाँ पे तरस रहे हैं, एक टाइम का खाना खाने के लिए वो तरस रहे हैं लोग बेचारे। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है हुकूमत की, कोई हुकूमती लेवल पे कोई गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत मेहरबानी। जी असल जैसा कि आपने लोगों की मुख्तलिफ राय सुनी और उनका कहना था कि जो खुद साख्ता महंगाई की गई है जिसकी वजह से इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और लोगों के घरों में फाका कशी का आलम है। और इसके अलावा जो तनूर माफिया है उन्होंने भी जो है वो रोटी की कीमत 10 से 15 रुपये कर दी है, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको चुइंडा से अपडेट कर रहा था। असमतुल्लाह भट्ट, सिटी 5 न्यूज़, चुइंडा। जी रुख करते हैं तांदले वाला से, जहां पर हमारे नुमाइंदा अली हसन साबरी हमारे साथ मौजूद है। जी अली हसन साबरी, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है आपके इलाका में कोरोना वायरस के हवाले से। जी अली हसन साबरी बताइएगा। जी असल इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील तांदले वाला के कस्बा गढ़ फतेह शाह में। यहाँ पर जो हुकूमती अहकामात हैं वो आवाम ने जो है वो हवा में उड़ा दिए हैं। आपको हर तरफ जो है वो आवाम ही आवाम नज़र आएगी। इस हवाला से जो पुलिस थाना गढ़ है, इस कस्बा से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर जो है थाना है, वो पुलिस जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। हम जब इधर आ रहे थे तो रास्ते में जो डबल सवारी की पाबंदी लगी है इस वक्त, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। 2 पुलिस वैन जो है वो हमारे करीब से गुजरी, उन्होंने हमसे भी नहीं पूछा कि आपने डबल सवारी की खिलाफवर्जी क्यों की हुई है, हालांकि पाबंदी लगाई गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से। ये सूरत हाल जो है वो पंजमानी में देख लें, किलियावाला में देख लें, ताकि आप गढ़ फतेह शाह में देख लें, आपको जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल पे सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। इस हवाला से जो हुकूमती अहकामात हैं लॉकडाउन के, जुज़वी लॉकडाउन के, उसको एक मजाक बना दिया गया है। और उसमें जो सबसे बड़ी वजह है, जब लोगों से पूछा जाता है कि यार ये आपके फ़ायदे के लिए है, आप घरों में क्यों नहीं बैठते, तो उनका यही कहना है कि ये जो बेशतर इलाका है यहाँ पर मजदूर तबका है। वो कहते हैं कि अगर हम एक दिन मजदूरी ना करें तो हमारे बच्चे जो हैं वो तो भूखे मर जाएंगे। इस हवाला से जो इस इलाका के सियासतदान हैं उन्होंने भी आवाम को बिल्कुल मायूस किया है। आवाम का यही कहना है कि हुकूमत पहले हमें जो राशन पानी है, हमारे बच्चों का खाना पीना है, वो हमें घरों पर मुहैया करें, फिर तो हम घर में बैठने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत हमें राशन नहीं देती, हमें खर्चा पानी नहीं देती, तो हम घरों में कैसे बैठें? हम गरीब आदमी हैं, रोज़मर्रा जो काम करके शाम को हमारे घर का चूल्हा जलता है। इस हवाला से जो इलाका के सियासतदान हैं उनको आप देख लें कि इलेक्शन के दिनों में यहाँ पर PTI के लीडरान हैं, मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं, पीपल्स पार्टी, 3 बड़ी जमातें जो हैं उनके जो है साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं इस हल्का में। अगर इलेक्शन के दिनों में देखें तो वो करोड़ों रुपए की फ्लैक्सें छपवा लेंगे, जो हर गांव में आपको नज़र आएंगी। 15-15, 20-20 गाड़ियां वो ले जाते हैं। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में उन्होंने भी अपने वोटर और सपोर्टर को जो है वो तना छोड़ दिया है। और इस हवाला से जो हमारी SHO थानागढ़ से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जी हम आवाम पे सख्ती इसलिए नहीं करते कि ये ज़्यादातर मजदूर तबका है। अगर हम इन पे सख्ती करें तब हमारे लिए मुसीबत बनती है, अगर हम इस पे अमल दरामद करवाएं हमारे लिए तब मुसीबत बनती है। अब इस आवाम का जो है वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये सूरत हाल है अरशद साहब यहाँ पे जो तहसील तांदले वाला है उसमें। जी अरशद, मैं हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में तबाही फैलाने के बाद कोरोना पाकिस्तान में दाखिल हो गया। इस 15 दिन में जिस तरह वहाँ की सूरत हाल है ये बिल्कुल गैर मुतवक्को है। पाकिस्तान गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें अपने वसाइल के बावजूद भरपूर कोशिश कर रही हैं, लेकिन आवाम की तरफ से लापरवाही इसमें इजाफे का बायस बन रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की आबो हवा की वजह से, हुकूमती कारकर्दगी की वजह से और मुहैया हज़रात के तावन की वजह से काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा रहा है। वज़ीराबाद में 2 सिर्फ नौजवान इसका शिकार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतर हैं और उनके ख़ानदान भी बेहतर हैं। अवाम से यही अपील है कि हमें हुकूमती फ़ैसलों का एहतराम करना चाहिए। अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, अपने फैमिलियों की फलाह व बहबूद के लिए, उनको इस बीमारी से बचाने के लिए हमें
तमाम अदारों के साथ ताउन करना चाहिए। अपने घरों में बंद होकर अल्लाह से अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि हम इससे जंग करेंगे, इसको शिकस्त देंगे। अल्लाह ताला के साथ कौन जंग कर सकता है? ये हमारी कोताही और हमारी कमज़ोरियों और हमारे गुनाहों का नतीजा है। हमें अल्लाह ताला से रजू करना चाहिए, अल्लाह से अपने कोताहियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी कोताही और हमारी कमज़ोरियों और हमारे गुनाहों का नतीजा है। हमें अल्लाह ताला से रजू करना चाहिए, अल्लाह से अपने कोताहियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और वही गफूर रहीम है जो हमें इस आफत से महफूज रखेगा। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करें। मुहैयर हजरात अपने इलाकों में उन लोगों की मदद करें जो बेरोज़गार हो गए हैं और जिनका कोई कमाने वाला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ मुसलमान आलम नहीं बल्कि पूरी आलम इंसानियत इसकी लपेट के अंदर है, और ये मोहलक वबा हर तरफ फैल चुकी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी इसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, और आए दिन रोज़ बरोज़ इसके इजाफ़ा होता जा रहा है। इन हालात के अंदर हम सबका ये मजहबी, मिली, कौमी फरीदा है कि हम हुकूमत की तरफ से इस वबा को ख़त्म करने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, हमें उनके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि इन पर अमल करके ही हम अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपने माशरे, अपने मुल्क को बचा सकते हैं। ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि आए रोज़ जो वक्तन फ़वक्तन हदायत की जा रही हैं उन पर हमें अमल करना चाहिए। सबसे जो ज़रूरी बात है कि हमें अपने घर के अंदर रहना चाहिए। करंतना के अंदर या हस्पताल में वक्त गुजारने से बेहतर है कि हम अपने घर के अंदर हैं। मेरा घर मेरी जन्नत, अपने घर के अंदर रहने से बेहतर और कोई मकाम नहीं है। इन हालात में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें, और जो मजहबी फरीज़ा है ज़कात अदा करें, सदक़ात दें। ज़कात अदा करने का ये बेहतरीन वक्त है। कोई भी बीमारी, कोई भी मुसीबत, कोई भी वबा आ जाए तो इसको सबसे ज़्यादा ज़िक्र इलाही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने से, और दुआ, और फिर सदक़ात व खैरात, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्द बीमारियों और मुसीबतों से इंसानों को बचाते हैं। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है हम अपने माशरे में इर्दा गिर्द नज़र डालें, मफलूकुल हाल, गुरबा, मसाकीन जो हैं उनकी भरपूर तौर पर माली मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इस मुश्किल वक़्त से हमको निकालेगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात करें। एहतियात के ज़रिए ही हम इस वबा से बच सकते हैं। बाज़ लोग, बाज़ लोकल डॉक्टर्स हजरात मुख्तलिफ़ तदाबीर बता रहे हैं, एहतियातें बता रहे हैं। उनसे बेहतर यह है कि इज्तिमाई तौर पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन पर अमल किया जाए। इराक़ के अंदर एक मौके पर ताउन की वबा फैल गई और लोग 30-40 की तादाद में एक एक शहर के अंदर मरना शुरू हो गए। चंद जोशीले उलमा इकराम ने अपने वाज़ो तकरीर से लोगों को उबारा कि खुले मैदान के अंदर चलते हैं, चल के वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इज्तिमाई तौबा करते हैं। लोग तो जब हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ पर जमा हो गए तो लेकिन सूरत हाल ये हो गई कि पहले जहाँ पर 30-40 अहबाब अफराद जो थे वो मरते थे, फिर हज़ार के करीब मरना शुरू हो गए। इस वक्त भी ये एक ऐसी वबा है, इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप दूसरों से हाथ ना मिलाएं, दूसरों से फासला रखें और अपने घरों के अंदर ठहरें। तो मेरा ये पैगाम है, ये रिक्वेस्ट है सबसे कि वो अपने घरों के अंदर रहें, अपना ख्याल रखें, अपने ख़ानदान वालों का ख्याल रखें, अपने माशरे का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें। और इसमें हम सब की बेहतरी यही है कि हुकूमती इक़दामात के ऊपर हम अमल करें और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने फ़राइज़ को भरपूर अंदाज से पूरा करें और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ भी करें कि अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में मुसलमानों के ऊपर इस वक्त जो एक मुश्किल वक़्त आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौफ़ैले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुश्किल सूरत हाल से हमें निकालें और मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना तैयबा और मसाजिद की रौनकें
اور آگے پھر رمضان المبارک آ رہا ہے. اس رمضان المبارک کے اندر اسی انداز سے وہ رونقیں دوبارہ بحال ہوں اور ہم اپنے مذہبی، قومی اور ملی فریضہ کو پورا کریں. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام عمر اکبر بٹ ہے. میرا یہ پیغام ہے کہ گھر میں رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اگر آپ محفوظ رہیں گے تو ہمارا ملک پاکستان محفوظ رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بھائی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بند تو ہو گئے ہیں، پر ان کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. ہم اس وقت 2 جنگیں لڑ رہے ہیں، ایک وہ کرونا کی وبا کی اور اس کے ساتھ بے روزگاری کی. ہمیں چاہیے کہ اس دونوں جنگوں میں حکومت پاکستان کا ساتھ دیں اور سیاسی پروپیگنڈوں چھوڑ کر ایک قوم ہو کر حکومت پاکستان کا ساتھ دیں. شکریہ. اللہ حافظ. کورونا وائرس کے پیش نظر حکومت پنجاب، پولیس اور دوسرے ادارے ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس مزید نہ پھیلے. اس کے ضمن میں ہمیں چاہیے کہ گھروں میں ٹھہرے رہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کو 100% یقینی بنائے تاکہ ہم اس وائرس سے بچ سکیں. اگر صورتحال زیادہ کرٹیکل ہو گئی تو اس کی کوئی ویکسین ابھی دریافت نہیں کی گئی. صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے. یہ صرف ہم پر ہی منحصر ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. میں ایک دفعہ اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ اس کو سنجیدہ لیجیے. یہ ایک خطرناک وبا ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا انجام موت ہوتا ہے. میں اپنے ایک دفعہ پھر پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز اور صحافی برادری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور سارا کام کرتے رہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے صحافی برادری کے لیے اور ڈاکٹرز حضرات کے لیے کہ جو میدان عمل میں جہاد کے لیے نکلے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا بھی حامی و ناصر ہو، ان کی مدد فرمائے اور وہ جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ محنت قبول کرے. کرونا سے ڈرنا نہیں کیوں اور اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے. یہ وقت توبہ کرنے کا ہے. ناظرین محترم، اب وقت ہوا چلتا ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عامر بٹ صاحب جو کہ CEO ہیں سٹی 5 نیوز کے. ان کے تاثرات جان لیتے ہیں. جی عامر بٹ صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ارسل جی بتائیے گا کرونا وائرس کے حوالے سے. جی ارسل، بالکل اس وقت پوری دنیا جو ہے اس مشکل میں ہے اور یہ کرونا وائرس کا جو عذاب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صرف اور صرف مسلمانوں کا نہیں، اس کی بنائی ہوئی اس دنیا کے اوپر ایک یہ عذاب ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یورپ میں سمجھتا ہوں میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہاں پر مکمل لاک ڈاؤن ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ یہاں پر لوگوں میں شعور ہے. ہماری پاکستان کی جو عوام جو ہے اس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی شہر میں اب دور نہ جائے، اپنے شہر وزیر آباد کی بات کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ وہاں پر سپرے کی گاڑیاں بھیج کے سپرے کرواتی ہے تو 10 بندے وہ باہر نکل آتے ہیں، آؤ جی دیکھیں جی سپرے ہونے والا ہے، آؤ جی سپرے کر رہے ہیں، سپرے دیکھیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں. ہمارے عوام اس کو ابھی تک سیریس نہیں لے رہی. اگر عوام اس چیز کو سیریس لے رہی ہوتی تو آج ہمیں اپنی فورسز کو روڈ کے اوپر نہ لے کر آنا پڑتا. یہاں پر کوئی فورسز روڈ پہ نہیں کھڑی. یہاں پر عوام کو انہوں نے ایک ٹائم دیا ہوا کہ آپ 2 کلومیٹر سے زیادہ باہر نہیں جا سکتے. اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے، اگر آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، آپ کے پاس اس کا لیٹر ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی گروسری کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، گھر کی ضروریات کے لیے، وہ آپ کو جانے کی ضرورت ہے. ادروائز آپ نہیں جا سکتے. پاکستان میں ہر چیز کو بلا وجہ مہنگا کیا جا رہا ہے. آٹے کو مہنگا کیا جا رہا ہے. ہم پر جب بھی آفت آئی ہے اس دنیا میں، اس قوم پاکستانی قوم ایسی قوم ہے، جب بھی آفت آئی ہے نا، انہوں نے ہمیشہ اس آفت کا فائدہ اٹھایا ہے. خاص کر ان لوگوں نے جو بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں وہاں پر، جو
आटे के बहरान पैदा कर रहे हैं, जो चीनी का बहरान पैदा कर रहे हैं, जो मेडिसिन का मास्क जो है इस चीज का बहरान पैदा कर रहे हैं, हाँ उनका किसी जमात से ताल्लुक हो। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो बंदा ऐसे मौकों पर ऐसी हरकतें करता है, ना उसका किसी दीन से ताल्लुक होता है, ना उसका किसी जमात से ताल्लुक होता है, उसका ताल्लुक सिर्फ पैसे से होता है। हाँ वो जैसा मर्जी बंदा हो। इस वक्त यहां पर आप मार्केट में चले जाएं, अभी थोड़ी देर पहले मैं मार्केट में गया हुआ था कुछ चीजें लेने के लिए, और यकीन करें कि 6 फुट के फासले पर उन्होंने एक स्टॉप का साइन लगाया हुआ है कि आपने इससे ज्यादा आगे नहीं जाना, आगे आपके इससे आगे जो बंदा खड़ा है उससे 6 फुट आप पीछे रहें, ठीक है। उसके बाद जगह जगह पर उन्होंने स्टॉप साइन लगाए हुए कि यह फासला रख के आपने चलना है एक दूसरे के पीछे। तो पाकिस्तान में अब मैं देखने में आ रहा है कि शुक्र है कि गवर्नमेंट ने शायद इनको बताया, ये खुद कर रहे हैं, ये चूने के दायरे बना के लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब तक हम लोगों में शऊर नहीं आएगा हम किसी बीमारी से नहीं लड़ सकते। ये अजाब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह से हमारी औकात नहीं है कि हम लड़ सकें। हम दुआ कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, अल्लाह के हजूर गिड़गड़ा कर रो सकते हैं कि या अल्लाह इस वबा को, इस बीमारी को हमसे कोसों मील दूर ले जा। जिस तरह तुमने एक हवा चलाई है और ये हम पर आफत तारी हुई है, उसी तरह एक रहमत की हवा चला दे और ये वबा हमसे दूर चली जाए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी बात माने, हुक्मरान जो है इस वक्त उनकी बात माने। ये भूल जाए कि कोई पीटीआई की हुकूमत है या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है या कोई भी हुकूमत है, भूल जाए इस चीज़ को। सिर्फ इस वक्त इंसानियत की बात माने, इंसानियत को प्रेफर करें। मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि जब तक आप खुद इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, कोई डॉक्टर, कोई हुकूमत, कोई आपका कुछ नहीं कर सकती। इवन यहाँ तक कि जब तक आप अल्लाह ताला से गिड़गड़ा कर इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगेंगे, अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा। और अल्लाह तो करीम है, रहीम है, वो तो माफ़ी को पसंद करता है। तो आपसे गुजारिश है कि जितने मुसलमान बहन भाई इस चीज़ से अफेक्टेड हैं, जितने पाकिस्तानी हर जिस मज़हब से भी उनका तल्लक है वो इस चीज़ से अफेक्टेड है, उनका साथ दें। और खसूसन एक चीज़ नोट करें कि अपने इर्द गिर्द हमसाए मोहल्ले में देखें। आपको पता है कि आपके मोहल्ले में कौन कितना किस तरह का है, कैसी साहब हैसियत है उसकी, वो क्या चीज़ अफोर्ड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो बंदा आप तक पहुंचने की कोशिश करे, आप खुद उसके पास पहुंचे। मज़ा इसी चीज़ में है। और ये असूल रहा पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का। जब भी मुश्किल की घड़ी आई है तो उन्होंने दिल खोल कर अतिये दिए हैं, दिल खोल कर एक दूसरे की खिदमत की है, बजाय कि आप जगह जगह पॉइंट्स बनाएं। मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ हम लोग अपने गली मोहल्ले को कवर कर लें साहिब हैसियत लोग, तो यकीन करें आप हुकूमत का बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पे ले लेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है पाकिस्तानी कौम की, ये जिम्मेदारी है बीइंग मुस्लिम हम सब की। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हमें इस अजाब से जल्द अज जल्द छुटकारा दे। आमीन सुम आमीन। ऐ खुदा हम हार चुके हैं, ऐ खुदा हम बहुत कमज़ोर हैं, ऐ खुदा हम बहुत गुनाहगार हैं। ऐ खुदा तेरी रहमत लाजवाल है। ऐ खुदा हम पर रहम फरमा। इस मुश्किल घड़ी में तेरे सिवा और कोई नहीं है जो हमें इस मूजी वबा कोरोना वायरस से निजात दिला सके। देख मेरे रब, हम हार गए हैं, हम झुक गए हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे खुदा तू रहीम है, तेरी रहमत लाजवाल है, मेहरबानी फरमा। इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया बहुत ही कठिन मरले से गुजर रही है। मैंने तो देखा है, एक वीडियो देखी जो मैं बयान नहीं कर सकता कि 2 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और वो DHQ गुजरांवाला में ज़ेर इलाज हैं। मेरे मालिक इन नन्हे फूलों को सेहतयाब फरमा और हमारी कौम को हदायत दे कि वो अपने घरों में टिके रहें
اور اس کرونا وائرس سے بچے رہیں۔ میرے مالک، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے مالک، تجھے کون چیلنج کر سکتا ہے؟ میرے مالک، ہم جھک گئے۔ دیکھ، پہلے ہم کہتے تھے کرونا سے ڈرنا نہیں، کرونا سے لڑنا ہے۔ کرونا تیری طرف سے ہم پر نازل ہوا، اور تیری طرف سے جو چیز نازل ہوتی ہے اسے لڑا نہیں جاتا۔ اگر وہ ہمارے لیے اچھی ہو تو الحمدللہ کیا جاتا ہے، شکر کیا جاتا ہے، اور اگر حالات خراب ہوں تو توبہ کی جاتی ہے، استغفار کیا جاتا ہے۔ میرے مالک، رحم فرما دے، اپنی مسجدوں کو، اپنے گھر کو پھر آباد کر دے کہ حالات میں پاکستان میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، اگر اس کو ابھی کنٹرول نہ کیا گیا تو صورتحال بہت کریٹیکل ہو جائے گی۔ تو کنٹرول حکومت نے نہیں کرنا، حکومت اپنا کام کر رہی ہے، ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ جو اس بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، خدا را اسے سنجیدہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پروگرام پبلک ویو ود محمد ارسل کے ساتھ پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔